નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ડોક્ટર સંબંધિત પાત્રાએ આજે વડોદરા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજી કોંગ્રેસ પક્ષ ઉપર આકરા પ્રહાર સાથે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વડોદરા શહેર જિલ્લાની તમામ 10 બેઠક ઉપર પ્રચંડ જીતનો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો। પત્રકાર પરિષદમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતની જનતા આ વખતે નવા રેકોર્ડ સર્જી ફરી એક વખત ભાજપની સરકાર બનાવશે। નરેન્દ્ર મોદીને મુખ્યમંત્રી અને પ્રધાનમંત્રી બનાવવામાં ગુજરાતની જનતાનો સિંહ ફાળો છે। લોકતંત્રમાં વિપક્ષ મજબૂત હોવો જરૂરી છે, પરંતુ કોંગ્રેસના સોનિયા, પ્રિયંકા અને રાહુલ ગાંધીમાં ઉદાસીનતા નજરે ચડે છે। ખરેખર પીએમ એટલે પસીનો અને મહેનત છે। આ ઉપરાંત સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક તથા પીઓકે નિવેદન મુદ્દે સેના ઉપર સવાલ ઉઠાવનાર રાહુલ ગાંધી અને તેમના મિત્રો ભારત તોડો યાત્રામાં સામેલ થવા ક્વોલિફાઈડ છે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી કોઈ ટુરિઝમ નથી, પરંતુ ગુજરાતની સત્યગાથા સાથે એકતાનું કેન્દ્ર છે। તેનો પણ કોંગ્રેસે વિરોધ કર્યો હતો। ભવ્ય રામ મંદિરનું નિર્માણ થતાં ભાજપ શાસનમાં વિકાસ અને સંસ્કૃતિ આગળ વધી રહ્યા છે। વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં વડોદરા શહેર જિલ્લાની જનતાને વધુ મતદાન કરવા અપીલ છે। નગરના અધ્યક્ષ ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અને ઓએનજીસીના ડિરેક્ટર ડોક્ટર સંબિત પાત્રાજી, ડૉક્ટર જ્યોતિબેન પંડ્યા, સત્યેન કુલાબકર, સંજીવભાઈ પંચોલી, આપ સર્વનું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે। પત્રકાર પરિષદનું કામ શરૂ કરીએ। હું સર્વપ્રથમ ડૉક્ટર વિજયભાઈને વિનંતી કરીશ કે આપણને ઉદ્બોધન કરે। ડૉક્ટર વિજયભાઈ। વડોદરા મહાનગરના ઇલેક્ટ્રોનિક અને પ્રિન્ટ મીડિયાના પત્રકાર મિત્રોનું આજે સ્વાગત છે। 2 દિવસમાં 3 વખત તમારી સાથે વાતચીત કરવાનો અમને મોકો મળ્યો છે। ઇલેક્શનનો સમયગાળો છે। રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા માન્ય શ્રી ડૉક્ટર પાત્રાજી આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। પોતે જનરલ સર્જન છે અને લેપ્રોસ્કોપી સર્જરી એમની સ્પેશિયાલિટી છે। વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રવક્તા તરીકેની તેમની જવાબદારી છે। હાલમાં ભારતની નવરત્ન કંપનીઓમાંની એક એવા ઓએનજીસીના ડાયરેક્ટર તરીકે પણ એ સેવા આપી રહ્યા છે। ત્યારે વડોદરા મહાનગરમાં એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ। 2022ના વિધાનસભાના ઇલેક્શનમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં જે પ્રકારનું ભારતીય જનતા પાર્ટી માટેનું માહોલ બન્યું છે, માન્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની ગઈકાલની જાહેર સભામાં જે રીતે કાર્યકર્તાઓ અને શુભેચ્છકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, છેલ્લા 20 દિવસથી સમગ્ર ગુજરાતમાં જે રીતે માન્ય મોદી સાહેબ, માન્ય શ્રી અમિતભાઈ, માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ અને અન્ય સૌ મુખ્ય લોકોના પ્રવાસના માધ્યમથી 150 કરતાં પણ વધારે સીટ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો જીતે એ પ્રકારનું જે આયોજન થયું છે, માન્ય મોદી સાહેબ હંમેશા એમના પ્રવચનમાં કહેતા રહ્યા છે। ગઈકાલે પણ એમણે વાત કરી છે કે નરેન્દ્રનો રેકોર્ડ ભૂપેન્દ્ર તોડે, એના માટેની આ અમારી મહેનત છે। તો જે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફનું વાતાવરણ બન્યું છે અને જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ પેજ સમિતિના માધ્યમથી લોકો સુધી પહોંચી રહ્યા છે, એને કારણે વડોદરા મહાનગરની 5 વિધાનસભાની બેઠક અને વડોદરા જિલ્લાની 5 વિધાનસભાની બેઠક, આમ 10 બેઠક ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય નિશ્ચિત છે। આ સંદર્ભમાં આપની સાથે વાતચીત કરવા માટે માન્ય ડૉક્ટર પાત્રાજી ઉપસ્થિત છે। ત્યારે એમને હું વિનંતી કરું કે તેઓ આજની આ પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધન કરે। माननीय श्री पात्रा। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर। आप क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था उसी समय मैं न्यूज़ चैनल में देखा कि सूरत में जो अवैध 75 लाख पकड़े गए हैं उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है और कोई अशोक गहलोत जी का व्यक्ति उसमें सम्मिलित है। मैं पूरी उसकी जानकारी लूँगा, मगर वैसे ये अतिशयोक्ति नहीं है। जहाँ भी भ्रष्टाचार है वहाँ कांग्रेस का होना ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि जहाँ बादल होगा वहाँ पानी होगा। बहन, ये तो नाइंसाफ़ी है। अगर हम लोग कांग्रेस का नाम नहीं लेते हैं तो आप कहते हैं कि डिक्टेटर बन गए हैं। ये लोग विपक्ष का नाम भी नहीं लेते हैं, और नाम लेते हैं तो आप कहते हैं कांग्रेस का नाम क्यों ले रहे हैं। एक डेमोक्रेसी में विपक्ष का नाम लेना ये आवश्यक है। 2 दिन पहले सीएम अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने आरोप ऐसा लगाया है
कि जो सत्येंद्र जैन का जो वीडियो है उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि फिजियोथेरेपी के लिए, तो वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। और उन्होंने तपास ये भी करने को बोला है कि अमित शाह जी जब मंत्री थे गुजरात में, उन्हें भी जेल जाना पड़ा था और उनको जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं कह सकते, ऐसा उन्होंने कहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है, अगर अभी भी अरविंद केजरीवाल जी एक रेपिस्ट को फिजियोथेरापिस्ट कहने में लगे हुए हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो इससे शर्मनाक बयान कोई नहीं हो सकता। मैं खुद डॉक्टर हूँ, यहाँ अध्यक्ष जी भी डॉक्टर बैठे हुए हैं। ये हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत ख़राब बात है कि जिस व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपनी ही बेटी के ऊपर दुष्कर्म करने का इल्ज़ाम हो, कम से कम उसको हमारे प्रोफेशन से मत जोड़िए। ये हम लोग डॉक्टर बैठे हैं, कम से कम ऐसा तो ना करें। देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुझे लगता है ये लास्ट चुनाव है, हम उनका नाम ले रहे हैं। अगली बार शायद वो पक्ष भी ना हो, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है। और गुजरात के अंदर ही मुझे आश्चर्य लग रहा है, वहाँ तो वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यहाँ तो खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। अब देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि लोकतंत्र में एक अच्छा प्रतिपक्ष, एक स्ट्रांग प्रतिपक्ष होना चाहिए, मगर प्रतिपक्ष स्ट्रांग हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी स्ट्रांग हो। अब ये काम नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी तो नहीं करेंगे ना, ये तो खुद को उनको करना पड़ेगा। नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करें? सर, विपक्ष की आप बात कर रहे थे, विपक्ष से बार बार सवाल उठाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हो, कुछ भी हो, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि भाई जो अपना चुनावी कमिश्नर जो बनाया गया अरुण गोयल को, आज सुप्रीम कोर्ट ने आपके सरकार के पास फाइल मांगी है कि भाई क्यों बनाना पड़ा, वीआरएस लेने के बाद तुरंत ही उसको क्यों बनाया। ये विषय सुप्रीम कोर्ट का है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जगदीश ठाकुर ने गुजरात के प्रमुख कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के मतदान के 1 महीने पहले दो और पैरोल पे छोड़ा जा रहा है और वो लोगों को धमका रहे हैं। देखिए, मैं तो गुजरात का नहीं हूँ, मगर मैं तो अखबार पढ़ता हूँ, आप लोगों का चैनल भी देखता हूँ। 1995 से पहले गुजरात की स्थिति क्या थी ये छुपा नहीं, किस प्रकार से गुंडे और किस प्रकार से दादाओं का बोलबाला था। मगर आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, कल अमित भाई ने भी कहा है कि आज अगर दादा कोई है तो एक ही दादा है, वो हमारे सोमनाथ दादा है, शंकर दादा हैं, और वो हमारे हनुमान दादा हैं। उनका आशीर्वाद गुजरात के ऊपर है और उनके आशीर्वाद से गुजरात अनवरत पूरे भारतवर्ष में आगे बढ़ रहा है। आज कोई दादा और नहीं है, केवल ईश्वर का आशीर्वाद। इसमें मैं आपको बताऊं कि मैं एक लोकल नहीं हूं, बाहर से आया हूं, तो ये थोड़ा विषय मुझे जानना पड़ेगा, मैं जान के जवाब दूंगा। गुजरात सरकार पहले प्राइवेट सेक्टर से खरीदती नहीं थी, आज 40% हो गया गुजरात सरकार अपनी बिजली उत्पादन कर रहा है। उसके सामने जो गुजरात सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से लेना शुरू कर दिया, इसके लिए भाव बढ़ा है। मैं इसका पूरा पता लगा के जवाब दूंगा, पूरा पता लगा के, बिना अध्ययन प्रवक्ता को कभी जवाब नहीं देना चाहिए, मैं अध्ययन करके जवाब दूंगा। भारत और कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है, वडोदरा में 3 सीट ऐसी है जहाँ पे वो एमएलए या एमएलए ने अपक्ष उम्मीदवारी के लिए इनको बनाया गया है, तो वो क्या? देखिए, अगर हमारे पार्टी से कोई अपक्ष में अर्थात हमारे खिलाफ भी लड़ रहा है, हम फिर भी सम्मान भाव के साथ हाथ जोड़ के परिवार के रूप में ही कहेंगे। हमारे बड़े उनके पास जाएंगे, गए भी हैं और भी जाएंगे, वो हमारे परिवार के हिस्से हैं, कभी भी उनके लिए हम खराब नहीं सोचेंगे। बाकी हमारे परिवार के बड़े लोग बैठे हैं, वो मिलके करेंगे, माने तो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अपक्ष लड़ ही रहे हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक कर देंगे। कांग्रेस का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी की सेंचुरी पूरी होगी 2017 में, रिकॉर्ड टूटेगा। देखिए, कोरोना पैंडेमिक के पश्चात जो वैश्विक परिस्थिति बनी है वो बहुत ही चिंताजनक रही, मगर फिर भी आज हम बहुत ही खुशी के साथ कह सकते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने जो हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट जारी किया है कि पूरे विश्व में रिसेशन होने वाला है, पूरा विश्व और उसकी अर्थ स्थिति जो है वो उसकी गति कम होने वाली है, केवल भारतवर्ष ही एक ब्राइट स्पॉट रहेगा एंड इंडिया विल नेवर गो इनटू रिसेशन। भारत कभी रिसेशन में नहीं जाएगा क्योंकि उसकी जो मूल बुनियाद है अर्थनीति की वो स्ट्रांग है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज जो अर्थनीति भारत में चल रहा है वो वैश्विक महामारी से लड़ने की क्षमता भारतीयों को देता है। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज हो या फिर हर गरीब के घर में राशन कैसे पहुंचे, मुफ्त राशन कैसे पहुंचे, इसकी चिंता करनी हो, हर व्यक्ति को किस प्रकार से 3 डोज वैक्सीन के मिले, वो भी मुफ्त मिले, इसकी चिंता बड़ा प्रधान जी ने लगातार अनवरत परिश्रम करके किया है।
सर, ये गुजरात में है। आपका बहुत बड़े दो मुद्दे रहे हैं, लेकिन भाषण जो नेता आ रहे हैं यहाँ से, उनके भाषणों से जीएसटी और नोटबंदी दोनों गायब है। नहीं, आप लोग सवाल पूछते हैं, हम लोग सबका जवाब देते हैं। ये विषय कोर्ट तक भी गए हैं, कोर्ट में भी सब सरकार जवाब दे रही है, कोर्ट में भी विषय को रख रही है, तो कोई भाग नहीं रहा है। और इन विषयों पर तो लोकसभा का चुनाव भी हुआ है। पिछला लोकसभा का चुनाव के मुख्य दो मुद्दे थे, जनता ने आशीर्वाद दिया है। सर, गुजरात रिकॉर्ड टूटेगा और हमें वेट करना चाहिए 8 तारीख को। मैं अधिक कहूँगा तो ये आपको अहंकार लगेगा, इसलिए मुझे लगता है अहंकार से हमें नहीं होना चाहिए। अति आत्मविश्वास भी नहीं, मगर विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड टूटेगा और ये रिकॉर्ड विकास के लिए टूटेगा, जनता के आशीर्वाद के लिए। सभी एक बार वहाँ से भी हो जाए। 75 लाख पकड़े गए, उसमें कांग्रेस का कनेक्शन सामने आया। इससे पहले भी केस पकड़ी गई तो उसमें आम आदमी पार्टी का कनेक्शन सामने आया, तो वो भी सुरक्षा क्या प्रदेश अध्यक्ष और होम मिनिस्टर का इलाका है, इसके लिए दूसरे जो राजकीय पक्ष है वो ज़्यादा पैसों की हेराफेरी कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से पैसों की हेराफेरी आपने अभी कांग्रेस के विषय में सूरत में कहा, जो अभी न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है, उसकी जांच भी हो रही है और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जांच करने के पश्चात जो सत्य है सामने आएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और इसी कारण से इस प्रकार के लेन देन में वो व्यस्त है और वो जानती है कि बुरी तरह से वो हारने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन होता है, ये पैसे का लेन देन, पैसा पकड़ा जाना, ये एक फ्रस्ट्रेशन भी होता है। वहाँ से भी बहन आपने बोला कि जहाँ पे भ्रष्टाचार होता है वहाँ पे कांग्रेस की होती है, तो मोदी भी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी जांच हो रही है, अभी भी कोर्ट ने कुछ कहा है। बिल्कुल देखिए, खुद पालिका में बीजेपी की सरकार है। कोई, मैंने कहा ना, किसी की भी सरकार हो, हमारी सरकार है, पूरी जांच हो रही है और कोई नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, इसमें आप बिल्कुल निश्चित रहें।